Progress. Good morning, students. Good morning, sir. So, after a long time, we are again starting a new topic after your midterm test. So, before the midterm test, we have covered some portion of 5th unit, that is fabric structure, in which we have covered fundamentals or basic concepts related with fabric structure, elements of design, that is weave, draft, lifting plan, denting plan, their presentations, and then method of construction of these elements from the given elements, like construction of design or weave from given draft and lifting plan, or if weave is given, how we construct draft and lifting plan. So all the cases we have studied in detail. Then we have taken basic views, in which we have covered plain view, twill view, satin and satin view, and their characteristics, their construction, and their uses. So now we are stopping our fabric structure topic here. Now remaining topics in fabric structure are derivatives of plain view and some modifications of twill view that we will cover later on. Before that, we are taking one topic which is remaining from second unit, about shading mechanism. And in shading mechanism, in our syllabus, we have tappet shading as well as Dobby shading mechanism. Tappet shading mechanism already we have covered. So today we are going to take second type of shading mechanism, that is Dobby shading mechanism. Overall, there are three types of shading mechanisms. As you know, tappet shading, Dobby shading, and Jacquard shading mechanisms. And we have understand the differences between these three, tappet shading, Dobby shading, and Jacquard shading mechanisms in the previous topic when we have studied shading mechanism. So today we will try to understand how this Dobby shading mechanism works. So to understand this, we are taking some diagrams, and with the help of diagram, you can understand how the Dobby shading mechanism works. Before that, once again, I'm reminding you the definition of shading. Shading or dividing the work is the first primary motion of weaving. It is done by means of treadles, means tappets, dobbies, and jacquards, both in handloom and power loom. So any one mechanism can be used according to our suitability, according to our requirement. Treadles, it is sometimes known as treadle shading mechanism or sometimes known as tappet shading mechanism. Both the names are given because in this important parts are treadles or tappets. A Dobby shading mechanism, in which we are using a device which is known as Dobby, and that's why shading mechanism is termed as Dobby shading mechanism. And if we are using jacquards, which is also a device used for shading, if we are using jacquards, then the mechanism is known as Jacquard shading mechanism. Every mechanism is having their limitations, their minus points, plus points, their advantages, disadvantages. So according to situation, according to our requirement, somewhere we prefer tappet shading, somewhere we prefer Dobby, or somewhere we prefer Jacquard shading mechanism. Shading can be of two types, negative and positive shading. Shading is said to be negative when the heel shafts are either raised or lowered by the mechanism, but returned by the action of some external device such as springs, pulleys, etc. Means both the motions, lifting and lowering, is imparted with the mechanism positively, then it is known as positive. Otherwise, if one type of motion is given by some mechanism, either lifting or lowering, but the return is done by some external device like springs or pulleys, then that type of mechanism, the type of shading is known as negative shading. Positive shading implies that the heel shafts are both raised and lowered by the cranks and lever system of the shading mechanism. So in this way, you can define or categorize shading in negative and positive types. Dobby is a shading device placed on the top of a loom.
ये इसका लोकेशन बता रहे हैं, जैसे टैपेट्स बॉटम शाफ्ट या टैपेट शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होते हैं एट द बॉटम ऑफ द लूम. हियर दिस डॉबी this Dobby is a shading device which is placed on the top of a loom in order to produce figured pattern. जहां पर हमें फिगर इफेक्ट देने हो, छोटे छोटे फिगर्स बनाने हो किसी भी फैब्रिक के अंदर, for that we generally use Dobby shading by using large number of fields than the capacity of a tappet. जो फिगर्स, जो डिजाइंस टैपेट शेडिंग से नहीं बन सकती है, because tappet shading is having a limitation. Only 8 to 10 hills can be operated, can be controlled by tappet shading mechanism. The designs which requires more than 8 or 10 hill frames, for that we are going for Dobby shading mechanism. In fancy weaving, the Dobby is used to produce small figures by means of warp threads and hills. So here we are using Dobby is used to produce small figures by means of warp threads and hills. I have a call, so just wait. Sorry for inconvenience. So here we are producing small figures. If large figures are required, then we go for Jacquard shading mechanism. So what is the scope of Dobby? The scope is limited between the use of tappets and Jacquards. इन दोनों के बीच का स्टेज होता है Dobby. The designs which are very large are produced on Jacquards. The designs which are very small can be produced on tappets. But the designs which are in between these two means in which case the Jacquard, if you use the Jacquard, then that much that much individual control of threads is not required. That can be controlled with the help of Dobby. Then we are going for Dobby shading mechanisms. Dobby is used when the number of shafts to be controlled or the pick in the repeat of a design is beyond the range of the shading tappets. Otherwise, we prefer shading tappets because we can go for higher speeds of loom. We can go for higher productions of loom with tappet shading mechanisms. But if the designs are designs require more number of field frames, which is not in the capacity of tappet, or if the design repeat, the picks per repeat is more than 8 or 10, then also tappets cannot be used. So for that, we use Dobby shading mechanism. And so Dobby is used when the number of shafts to be controlled or the pick in the repeat of design is beyond the range of the shading tappets, and also too small to be produced by a Jacquard economically. और इतना छोटा है कि Jacquard से अगर बनाएंगे तो हमें उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी. In that case, we are referring this Dobby shading mechanism. Here I'm trying to explain you one type of Dobby shading mechanism, which is known as climax Dobby, CLIMAX, climax Dobby, and this is a open shade type of Dobby. So first, I will try to introduce name of the parts of climax Dobby, which is shown with the help of this diagram. However, the diagram may look a little bit complicated, but when I will break the diagram in different sections, then it will become very easy to understand and also to draw the diagram. So if you divide the diagram into different sections, different parts, then only you will be able to understand the diagram. So first of all, try to focus and just to get acquainted with the name of the parts. So we are starting from here. This part is indicated by A. So A is a bottom shaft. Means this climax Dobby shading mechanism is also operated by bottom shaft.
Few mechanisms are operated by directly operated by crankshaft, and few are operated by bottom shaft. So this is also operated by bottom shaft, same as tapered shedding mechanism is also operated from bottom shaft. So A is indicating bottom shaft here, and on the A, one crank is mounted, which is indicated by B. This L shape. This is showing a crank, so it is indicated by B, and this crank is mounted on the bottom shaft. Then C is upright. This vertical rod, it is a long rod. That's why just to show its length, we are breaking it in between, but because it is indicating that it is having very good length. So this C is indicating a upright, or this is also known as a vertical rod. So this vertical rod or upright is connected with this crank, which is indicated by B. So A is bottom shaft, B is a crank, and C is upright. So when this bottom shaft is rotating, this crank will give to and fro motion to this vertical shaft. And this vertical shaft or this upright, which is indicated by C, is connected to one lever, which you can see having T type of shape. The letter T is formed. T को अगर 90 डिग्री पर करें तो इस तरह का लेटर फॉर्म हो रहा है, and due to this is known as T lever. This is vertical lever, this is T lever. So vertical lever is connected with T lever at the upper side, and at the lower end connected with the crank, and crank is mounted on the bottom shaft. ये एक section आप समझे, and in this section you can include these two things which are indicated by E and F. E is top knife and F is bottom knife. These are known as knives, top knife and bottom knife. And this top knife is fixed in this slot at one end of the T lever, and this F is fixed to the other end of the T lever. So these are this is top knife and this is bottom knife, and this is extending width wise of the loom. ये पूरा width wise extend होता है, जो दोनों knives हैं, these are extending width wise. So this you can divide into one section. यहाँ तक का जो part है, इसको हम एक section में divide करें. A, again repeating, crank, this bottom shaft. B is crank mounted on bottom shaft. Crank is connected to the T lever with the help of this upright C. T lever is indicated by D, letter D. And T lever के जो दोनों extreme ends हैं, एक end पर top knife connected है और एक end पे bottom knife fix है, E, which is indicated by E and F. So this is one section of this Dobby shedding mechanism, and in this way it will be easy to remember and draw the diagram. Then I'm taking another section from here to here. So try to understand the name of the parts here. So again, we are moving to J and M. This is J, letter J, and this is letter M. यहाँ पे कुछ notches are shown here. These two, J ये पूरा है, यहाँ से लेकर जो मैं arrow लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक तरफ तो इस लीवर में आके फिक्स हो रहा है. यहाँ पे जो ब्लैक डॉट दिखाया हुआ, दिस इज फल्क्रम पॉइंट ऑफ दिस लीवर, और ये लीवर इस तरह से बना हुआ. इस लीवर का शेप ये जो दिया हुआ, ये पूरा एक लीवर है जिसको हमने जे से इंडिकेट किया, एंड जे इज नोन एज आउटर है, इसलिए इसको आउटर जैक लीवर बोल रहे हैं. और ये अंदर की तरफ है तो इसको हम बोल रहे हैं इनर जैक लीवर, एम. एंड एम इज फल्क्रम्ड हियर. एम यहाँ पे फल्क्रम है, और एम का शेप ये जो मैं एरो से शो कर रहा हूँ, दिस इज शेप ऑफ एम. सो दीज टू आर द जैक लीवर्स, आउटर जैक लीवर J, inner jack lever M, and these two jack levers are connected or are linked through a link which is in a C shape, and that's why it is known as C link, indicated by L. So once again repeating, J is outer jack, fulcrumed at N. This M is inner jack, fulcrumed at K. And these both the levers, outer jack lever and inner jack lever, both are connected with each other with a link indicated by L,
known as C link. यहाँ मैंने शो किया L is the C link. और इस J का फलक्रम है यहाँ पर N पर, और M का जो फलक्रम है K पर है. और आप जैसा कि जानते हैं कि हर पार्ट जो मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है या अप एंड डाउन मोशन करता है, it is moving with respect to some fixed point, and that fixed point is known as fulcrum. तो ये इसका फलक्रम है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और ये फलक्रम है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है. एंड बोथ आर कनेक्टेड, सो बोथ आर मूविंग टुगेदर. और यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग्स दिखा रखी है, these two strings are connected with one heel frame. So both the jacks are lifting and lowering same heel frame, one heel frame. तो इस तरह से दोनों जैक मिलकर के एक हिल फ्रेम को लिफ्ट करेंगे या लोअर करेंगे. द लिफ्टिंग ऑफ हिल फ्रेम, लिफ्टिंग एंड लोअरिंग ऑफ हिल फ्रेम इज डन विद द हेल्प ऑफ दीज टू जैक लीवर्स. जितना हिल फ्रेम्स होंगे उतने जैक लीवर्स होंगे. सो दीज जैक लीवर्स आर अरेंज्ड width wise of the loom. If we have 4 heel frames, then we are using or we are making active only 4 outer jacks and 4 inner jacks. ये पूरा एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और एक एंड हिल फ्रेम का यहाँ कनेक्ट होता है, दूसरा एंड हिल फ्रेम का यहाँ कनेक्ट होता है. तो हिल फ्रेम कैन बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. अदरवाइज अगर एक जैक यूज करें तो हिल फ्रेम में गेट टिल्टेड. तो उस टिल्टिंग को रोकने के लिए हिल फ्रेम एक वर्टिकल प्लेन में, एक ही प्लेन में ऊपर की तरफ मूव करें, नीचे की तरफ मूव करें, वो टिल्ट नहीं हो, एक साइड में टिल्ट नहीं हो. तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 जैक यूज कर रहे हैं, डबल जैक यूज कर रहे हैं. So here we are using, these are complementary jacks, and one pair is used for one heel frame. So in that way, depending on the number of heel frames, 4, 6, 8, 12, 16, 18, आप कितने heel frames use कर रहे हैं, उतने inner jacks और outer jacks होंगे. Getting this point? उतने ही C links होंगे, क्योंकि दोनों को कनेक्ट करने के लिए C link होता है. और आप देखिए इस outer jack का जो एक एंड है, इसका शेप आप देखिए, एक एंड यहाँ आके फिक्स हो रहा है इन अनदर लीवर विच इज इंडिकेटेड बाय I, एंड दिस I is bulk lever, BAULK, indicate shown here, the name is, this is bulk lever. So I is a bulk lever. तो ये दूसरा सेक्शन हुआ. एक सेक्शन मैंने आपको नाइफ तक बताया, बॉटम शाफ्ट से लेकर नाइफ तक, एंड हाउ दे आर कनेक्टेड. दूसरा सेक्शन में बता रहा हूँ आपको इनर जैक लीवर, आउटर जैक लीवर connected with C link and having their fulcrum point and connected with the bulk lever which is indicated by I here. और bulk lever का शेप S जैसा होता है, तो इसको हम S lever भी बोलते हैं, bulk lever और S lever. तो ये जो couple of jacks हैं, उनमें से जो outer jack होगा, जितने भी number of jacks होंगे, जितनी hill frame होगी उसके according number of jacks होंगे, और ये सारे आकर के यहाँ एक जो slot है इस S lever या bulk lever में, उसमें आके फिक्स होते हैं. यहाँ पर एक पिन होती है और उसमें आके ये फिक्स होते हैं. और इसके ऊपर के पार्ट में एक पार्ट कनेक्टेड दिखाया हुआ, इंडिकेटेड बाय G, और जो लोअर पार्ट है इस S लीवर का लोअर पार्ट है, वहां पर एक दूसरा एक हुक और दिखाया हुआ है, इंडिकेटेड बाय F. इनको हम टॉप हुक्स बोलते हैं, G को, इनको हम बॉटम हुक्स बोलते हैं. ये टॉप नाइफ है, उसी से ये टॉप हुक्स हो गए. ये बॉटम नाइफ है, बॉटम नाइफ के कनेक्ट में आएंगे बॉटम हुक्स, टॉप हुक्स एंड बॉटम हुक्स. एंड नंबर ऑफ टॉप हुक्स एंड बॉटम हुक्स, टॉप हुक्स की भी एक लाइन होगी, पूरी सीरीज होगी, एंड दैट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हिल फ्रेम्स. 16 हिल फ्रेम्स यूज करेंगे तो हम यहाँ पे 16 एक्टिव हुक्स रखेंगे, और सिमिलरली 16 एक्टिव बॉटम हुक्स रखेंगे. दोनों दो हुक्स मिलकर के एक हिल फ्रेम को ऑपरेट करते हैं. तो ये दोनों 2 हुक्स का एक पेयर हो गया, टॉप हुक, बॉटम हुक. और अगर 16 हिल फ्रेम्स है तो 16 टॉप हुक्स होंगे और 16 बॉटम हुक्स होंगे, एंड दे विल गेट कनेक्टेड विद दिस S लीवर. बॉटम हुक्स S लीवर के बॉटम पार्ट में और ये इसके टॉप पार्ट में. और इस तरह से ये S लीवर जो है, विद द हेल्प ऑफ हुक्स कनेक्टिंग विद द नाइफ इज कनेक्टेड विद फिक्स्ड ऑन T lever is fixed on vertical lever is fixed on crank, and crank is mounted on bottom shaft. So bottom shaft से movement through crank, upright, T lever, knives, then hooks के through bulk lever को, और bulk lever को जिस तरह का movement मिलेगा, that will be transmitted to the outer jack and inner jack levers. और outer jack lever और inner jack lever को upward movement मिल रहा है, downward movement मिल रहा है, उसके according hill frames को
हिल फ्रेम्स का लिफ्टिंग एंड लोअरिंग होगा। इन दिस वे हिल फ्रेम्स कैन बी लिफ्टेड एंड लोवर्ड विद द हेल्प ऑफ डॉबी शेडिंग मैकेनिज्म। पर किस हिल फ्रेम को when first peak is inserted, which hill frame should be lifted and which hill frame should be lowered? When second peak is inserted, which should be lifted and which should be lowered? And that plan is known as peg plan. तो उस पेग प्लान को हम यहाँ पर यूज करते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज सिलेक्शन मैकेनिज्म। ये तीसरा सेक्शन हो रहा है। फर्स्ट सेक्शन हमने यहाँ तक लिया था, नाइफ तक, बॉटम शाफ्ट से लेकर नाइफ तक। दूसरा सेक्शन हमने हुक से लेकर के आउटर जैक और इनर जैक लीवर का मैंने एक्सप्लेन किया, और ये पूरे सारे पार्ट्स कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं वो मैंने आपको शो किया। अब आप फोकस करें इस डायग्राम के इस पार्ट के ऊपर, जो कि मैं थर्ड सेक्शन बोल रहा हूँ जिसको। और उसके पहले आप यहाँ पर एक सेक्शन देखें जहाँ पे हमने दो लीवर्स इंडिकेट कर रखे हैं, इंडिकेटेड बाय ओ एंड पी। और पी क्या है? ओ इज बेंट फीलर एंड पी इज स्ट्रेट फीलर। ये लीवर्स हैं, इनको नाम दिया फीलर। ओ क्योंकि यहाँ से बेंट हो रहा है इसलिए इसको नाम दिया बेंट फीलर, और ये क्योंकि आगे से इस पोर्शन में स्ट्रेट है तो इसको हमने नाम दिया स्ट्रेट फीलर। सो पी इज स्ट्रेट फीलर, ओ इज बेंट फीलर। और इनको जो बनाते हैं, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें इसकी स्पेशलिटी क्या है? इन दोनों के जो बैक पार्ट है, ये जो नॉच, ये जो सेंटर पार्ट है, इसके अलावा जो ये फ्रंट पार्ट हो गया आगे की तरफ, और ये पीछे बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट इज हेवियर इन वेट एज कम्पेयर टू फ्रंट पार्ट। तो इनकी टेंडेंसी हमेशा इस तरफ डाउन, इस तरफ झुके हुए होने की होगी, ये हमेशा इस साइड झुके हुए रहेंगे। इसका मतलब इधर से ऊपर उठे हुए रहेंगे। नॉर्मल पोजीशन, जो नॉर्मल पोजीशन होगी उसमें ये इधर पीछे की तरफ अगर नीचे है, तो अगर ये इसका फलक्रम है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ है। सिमिलरली ये नीचे है तो ये ऊपर की तरफ है। इन दोनों को हम फीलर्स बोल रहे हैं, और इन फीलर्स को डायग्राम में हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है। एंड क्यू इनका फलक्रम पॉइंट है, क्यू के ऊपर ये माउंटेड है। तो इन रिस्पेक्ट with respect to Q they are moving. If it is moving downward, they will remain up. When this is lifted up, these feelers are lifted up from some device. हम कुछ ऐसा पार्ट यूज करके अगर इनको लिफ्ट करते हैं तो ये जब लिफ्ट होंगे तो ये नीचे होंगे। और इनकी लिफ्टिंग, इनको लिफ्ट करना या नहीं करना, दैट इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन मैकेनिज्म। अगर हम इनको लिफ्ट करते हैं तो मूवमेंट ट्रांसमिट होगा हिल फ्रेम्स को, हिल फ्रेम्स विल बी लिफ्टेड। अगर इसको हम पीछे से लिफ्ट करते हैं तो हिल फ्रेम्स विल बी लिफ्टेड। और इनको लिफ्ट करने के लिए हम छोटे छोटे पैग्स यूज करते हैं, PEGS पैग्स। जैसे आपने जो आइसक्रीम्स वगैरह देखी, कैंडीज वगैरह होती है, बिल्कुल उसका एक छोटा शेप बना दो, तो उस तरह का जो होता है उसको हम पैग्स बोलते हैं, PEGS। वुडन पैग्स होते हैं। हियर you are observing one cylinder is there, octagonal shaped cylinder is there, which is known as pattern barrel. ये क्योंकि पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है लिफ्टिंग प्लान के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको नाम दिया पैटर्न बैरल, इंडिकेटेड बाय T, एंड दिस इज इन ऑक्टागोनल शेप। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक चेन लगी हुई है। ये जो चेन है इसको लैटिस भी बोलते हैं, और इसके अंदर कई सारी लेग्स होती हैं, LEGS लेग्स, जो कि वुड की बनी होती है, इसलिए वुडन लेग्स होती है। ये जो अपने एक छोटे छोटे से पार्ट्स जो ज्वाइन करके दिखाया हुआ, ये एक एक लेग है, 1 leg, 2 legs, 3 legs, 4 legs, 5 legs, and they are joined with each other in a chain form, in a long chain form. So, and this is setted according to lifting plan. इसके ऊपर ये जो लैटिस है, इस लैटिस के अंदर नंबर ऑफ लेग्स होती है, विच इज इंडिकेटेड बाई R से हमने लेग्स को इंडिकेट किया है। This Q is fulcrum of feelers O and P. S are the pegs. ये जो छोटे छोटे से आप ब्लैक देख रहे हैं, लेग्स के अंदर जो दिखा रखा है छोटे छोटे से, उनको हम S से इंडिकेट कर रहे हैं, दे आर pegs. और ये जो लेग्स हैं ये विड्थ वाइज होती हैं, और इनकी एक पर्टिकुलर विड्थ होती है, और इसमें there are holes, 2 lines of holes. There are 2 lines of holes in each leg. हर लेग के अंदर 2 लाइंस होती हैं जिनके अंदर होल्स होते हैं। उन होल्स में हम पैग इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। That we have 2 choices. Either we can insert a peg in the hole in the legs, और अगर पैग है वहां पे, और जब ये इसके नीचे की तरफ आएगा, और जिन होल्स के अंदर पैग्स हैं, ये फीलर्स भी जो हैं
bent filler और straight filler जो हैं, they are depending on number of hill frames. Suppose we are taking a case in which 8 hill frames are there. अगर 8 hill frames है तो 8 outer jacks होंगे, 8 inner jacks होंगे. Similarly 8 bulk lever होंगे, 8 top hooks होंगे, 8 bottom hooks होंगे और 8 bent fillers होंगे, 8 straight fillers होंगे. और ये जो सारे bent fillers है ये रेस्ट कर रहे हैं, ये width wise एक्सटेंड कर रहा है पैटर्न बैरल जो वुड का बना हुआ है उसके ऊपर ये रेस्ट कर रहे हैं. तो जब भी ये लैटिस ऊपर आएगी, ये लैटिस रोटेट हो रही है और इस लैटिस को रोटेट कौन कर रहा है? ये पैटर्न बैरल. और पैटर्न बैरल को कौन रोटेट कर रहा है? ये सी वन पार्ट इज इंडिकेटेड नोन एज यू. इट इज अ जॉइंटेड पॉल known as jointed pole. So pole and ratchet wheel we are using. Ratchet wheel is not shown in the diagram क्योंकि ये पीछे की तरफ है, आगे पैटर्न बैरल आ रहा है. इसका जो दूसरा साइड है विड्थ वाइज एक्सटेंड हो रहा है. विड्थ वाइज जो दूसरा साइड इसका है वहां पर जहां ये लगा हुआ है वहां पर एक रैचेट व्हील लगा रहता है. तो ये जो पॉल एंड रैचेट व्हील है, टी लीवर से मूवमेंट मिल रहा है इसको. तो टी लीवर जब भी, अभी ये बैकवर्ड पोजीशन में है इसका ये पोर्शन और ये फॉरवर्ड पोजीशन में है. तो जब ये बैकवर्ड पोजीशन से फॉरवर्ड में आएगा तो ये जो पाउल है ये इसको वन टीथ का मूवमेंट देगा रैचेट व्हील को. और रैचेट व्हील अगर वन टीथ टर्न करेगा तो ये जो पैटर्न बैरल है ये मूव कर जाएगा. और ये मूव करेगा तो लैटिस मूव करेगी, यानी कि जो पहले जो लेग थी वो आगे चली जाएगी और जो प्रीवियस लेग जो है पीछे की तरफ जो लेग है वो यहाँ पर टॉप में आ जाएगी. और ये इस लेग पर आपने जो होल्स हैं उसमें किस तरह से पैक्स इंसर्ट कर रखे हैं. फर्स्ट होल में अगर पैग इंसर्ट कर रखा है तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट फिलर है वो लिफ्ट होगा. ये लिफ्ट होगा तो इसका ये पोर्शन लोअर होगा. और ये पोर्शन अगर लोअर होंगे तो आप देखिए बेंट फिलर डायरेक्टली टॉप हुक को सपोर्ट कर रहा है और स्ट्रेट फिलर डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता. तो यहाँ पर हम एक नीडल यूज कर रहे हैं, सपोर्टिंग नीडल इंडिकेटेड बाय वी. तो सपोर्टिंग नीडल स्ट्रेट फिलर के थ्रू टॉप हुक्स को कंट्रोल कर रही है. सो टॉप हुक्स आर कंट्रोल्ड बाय स्ट्रेट फिलर, बॉटम हुक्स आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय बेंट फिलर. बट ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता है तो इतना हम बेंट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमने एक सपोर्टिंग नीडल ले लिया. सपोर्टिंग नीडल इज रेस्टिंग ऑन द फ्रंट पोर्शन ऑफ स्ट्रेट फिलर. और स्ट्रेट फिलर अगर जब नीचे की तरफ होगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये जो नाइफ है, ये जो हुक्स हैं ये ऊपर उठ जाएंगे. पर जब ये इसकी नॉर्मल पोजीशन होगी कि ये ऊपर की तरफ रहेंगे, हुक्स हमेशा ऊपर की तरफ रहेंगे. पर जैसे यहाँ पर पैग होगा तो ये बैकवर्ड पोजीशन को हल्का सा ऊपर कर देगा. पैग की जितनी हाइट होगी उतना इसको ऊपर कर देगा फीलर, उस पर्टिकुलर फीलर को. और वो पर्टिकुलर फीलर जैसे ही ऊपर हुआ तो ये पोर्शन नीचे आएगा. ये पोर्शन नीचे आने से ये जो हुक्स हैं ये नीचे की तरफ गिरेंगे, दे विल फॉल डाउन. और वो नीचे की तरफ गिरेंगे तो नाइफ के कांटेक्ट में आएंगे. अगर ये नाइफ के कांटेक्ट में आते हैं तो इनको मूवमेंट ट्रांसमिट होगा. और जो भी नाइफ, जो हुक्स नाइफ के कांटेक्ट में आएंगे, कौन कौन से हुक्स आएंगे? जिनमें यहाँ पे पैक्स लगा हुआ है, पैक की वजह से ये लिफ्ट होंगे तो ये लोअर होंगे, ये लोअर होंगे तो हुक्स नीचे गिरेंगे, हुक्स नीचे गिरेंगे तो नाइफ के पैसेज में आएंगे. और अगर ये ऊपर जो इसकी नॉर्मल पोजीशन वो ऊपर रहेगा तो ये नीचे, ये हमेशा नीचे रहेगा तो ये हमेशा ऊपर रहेंगे. और ये ऊपर रहेंगे तो हुक्स ऊपर उठे हुए रहेंगे. और नाइफ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है लेकिन ये इसके पैसेज में नहीं आएंगे तो इनको मूवमेंट ट्रांसमिट नहीं होगा. तो उन्हीं हुक्स को, नाइफ तो रेगुलर मूव कर रहे हैं बिकॉज नाइफ इज कनेक्टेड विथ बॉटम शाफ्ट. बॉटम शाफ्ट के रोटेशन के साथ ही थ्रू क्रैंक, लीवर एंड दिस टी लीवर, इनको मूवमेंट कंटिन्यूस मिल रहा है. दे आर मूविंग. अभी जैसे इनवर्ट पोजीशन में है, नाउ दिस विल मूव आउटवर्ड पोजीशन, तो ये इनवर्ड आ जाएगा. फिर जब ये आउटवर्ड जाएगा तो ये इनवर्ड आ जाएगा. जब ये आउटवर्ड मूव करता है, अभी इनवर्ट पोजीशन में है, जब ये आउटवर्ड मूव करता है तो अगर हुक्स इसके पैसेज में आ रहे हैं तो जो हुक्स इसके पैसेज में आएंगे, सपोज फर्स्ट हुक, थर्ड हुक, फिफ्थ हुक, ये सेवेंथ हुक, ये अगर पैसेज में आ रहे हैं तो इन हुक्स को मोशन ट्रांसमिट होगा. इन हुक्स के थ्रू बॉल्क लीवर को मोशन ट्रांसमिट होगा, बॉल्क लीवर के थ्रू जैक लीवर्स को मोशन ट्रांसमिट होगा और जैक लीवर्स के थ्रू हिल फ्रेम को लिफ्टिंग मूवमेंट मिलेगा. हिल फ्रेम विल बी लिफ्टेड. So depending on the lattice here we are using, this lattice is part of selection mechanism and we are preparing the lattice according to lifting plan before starting the construction of any cloth, any before operation of the weaving system. एवरेज कोई देख के जाना चाहिए. Yes, pardon.
और मेरे कॉलेज में जेयूईटी गुना क्वेश्चन, किसी का माइक अनम्यूट है? प्लीज चेक किसका माइक अनम्यूट है। पार्थ, अर्पिता, यस सर। कैन यू ऑब्जर्व किसका माइक अनम्यूट है? उसको आप इन्फॉर्म करें कि वो म्यूट रखें अपने माइक को। ओके सर। So this is a little bit, I have introduced the whole diagram here, name of the parts and how the parts are connected, and then we will understand the working of this. So एक बार आपको clear हुआ, parts के नाम सारे clear हुए. However, diagram is little bit complicated, but still I have tried to repeat the things again and again and divided the whole mechanism into 3 sections. First section, bottom shaft, crank, upright, T-lever and knives, bottom knife and top knife and bottom knife. ये हमेशा मूव करता रहेगा ये मैकेनिज्म, जब क्योंकि बॉटम शाफ्ट रिवॉल्व कर रही है तो ये मैकेनिज्म को मूवमेंट मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली. इट विल मूव इनवर्ड से आउटवर्ड आएगा, तो तब ये आउटवर्ड, अभी ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है. अब ये नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट पिक के अंदर, नेक्स्ट रोटेशन में ये आउटवर्ड आ जाएगा और ये इनवर्ड चला जाएगा. और ये मैकेनिज्म सेलेक्ट कर रहा है 2 पिक्स के लिए, क्योंकि बॉटम शाफ्ट के एक रिवॉल्यूशन 2 पिक इंसर्ट होते हैं. तो पहले पिक पर ये वर्क कर रहा है, दूसरे पिक पर ये वर्क कर रहा है. यानी कि एक पिक पर हिल फ्रेम को जो मूवमेंट मिलता है वो टॉप हुक्स के थ्रू मिलता है, और सेकंड पिक पे बॉटम हुक से मिलता है. फिर थर्ड पिक पे वापस टॉप हुक से मिलता है, फोर्थ पिक पे बॉटम हुक से, फिफ्थ, 6, 7, 8 ऑल्टरनेट पिक के ऊपर टॉप हुक्स और बॉटम हुक्स एक्टिवेट होते हैं. तो अगर टॉप हुक्स ने फर्स्ट हिल फ्रेम को लिफ्ट किया है पहले पिक के ऊपर, और अगर हमें सेकंड पिक पे भी उसको लिफ्ट रखना है, सेकंड पिक में भी अगर उसका आपका सपोज 2 अप 2 डाउन है, तो पहले पे भी अप है, दूसरे पे भी अप है, तो दूसरे पे भी अगर अप रखना है, तो फिर ये हम बॉटम हुक्स को भी वापस बॉटम हुक्स के थ्रू अगेन उसको अपवर्ड मूवमेंट ही देंगे. तो फर्स्ट पिक पे कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, टॉप हुक्स, और सेकंड पिक पे कर रहा है बॉटम हुक्स. Bottom hooks are responsible for, suppose even number of picks, they are responsible for odd number of picks. इस तरह से इसकी वर्किंग होती है. तो 16 हिल फ्रेम्स है तो 16 हुक्स टॉप में होंगे और 16 हुक्स बॉटम में होंगे, और 16 बेंड फिलर्स होंगे. बेंड फिलर्स डायरेक्टली बॉटम हुक्स को सपोर्ट करेंगे, और ऐसे ही अगर 16 हिल फ्रेम्स है तो 16 स्ट्रेट फिलर्स होंगे और 16 निडल्स होगी, और 16 निडल्स एक एक निडल सेपरेटली एक एक हुक को सपोर्ट करेगी. फर्स्ट हुक, फर्स्ट निडल एंड फर्स्ट स्ट्रेट फिलर. सेकंड हुक इज रेस्टिंग ऑन सेकंड निडल which is supported by second straight filer. Third top hook is supported by third needle, supporting needle, which is supported by third straight filer. और बेंड फिलर डायरेक्टली 16 है और वो डायरेक्टली फर्स्ट बेंड फिलर इसको सपोर्ट करेगा, फर्स्ट हुक को, बॉटम हुक को, फिर सेकंड बॉटम हुक को, थर्ड बॉटम हुक को. इस तरह से सारे 16 को, 16 यहाँ पर बेंड फिलर्स होंगे और 16 ही टॉप बॉटम हुक्स हैं, तो 1 by 1 वो सेपरेटली एक को सपोर्ट करेंगे. और इस तरह यहाँ पर 16 हिल फ्रेम्स होगी, 16 आउटर जैक्स होंगे, 16 इनर जैक्स होंगे, 16 सीलिंग होंगे और 16 बॉल्क लीवर होंगे. तो बॉल्क लीवर को जो मूवमेंट ट्रांसमिट होता है वो हुक की पोजीशन पर डिपेंड करता है, और बॉल्क लीवर को अगर मूवमेंट ट्रांसमिट होता है तो हिल फ्रेम को लिफ्टिंग मूवमेंट मिलता है. हिल फ्रेम को अगर लिफ्ट करना है तो बॉल्क लीवर को मोशन ट्रांसमिट करना पड़ेगा, और बॉटम हुक को अगर मोशन, बॉल्क लीवर को अगर मोशन ट्रांसमिट करना है तो वो पर्टिकुलर हुक जो उस हिल फ्रेम को हिल फ्रेम से कनेक्टेड है वो दैट शुड बी फॉल डाउन. और वो फॉल डाउन उसका किस पर डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पर लेटिस लेग के अंदर अगर पैग इंसर्ट कर रखा है तो वो पैग यहाँ पर इसको लिफ्ट करेगा, तो ये नीचे होंगे, ये नीचे होंगे, तो ये दे विल फॉल डाउन. और अगर ये फॉल डाउन होंगे तो दे विल कम इन द पैसेज ऑफ नाइफ विच इज मूविंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड. अगर ये ऊपर है तो वो उसको मूवमेंट ट्रांसमिट नहीं करेगा, और अगर ये दे आर इन द लोअर पोजीशन हुक्स तो उनको मोशन ट्रांसमिट होगा. इन दैट वे हमें हिल फ्रेम को लिफ्ट करना है तो हम इसको मोशन ट्रांसमिट करेंगे. इसको मोशन ट्रांसमिट करना है तो यहाँ पर हम पैग इंसर्ट करेंगे, और अगर नहीं करना है तो हम पैग इंसर्ट नहीं करेंगे, होल को खाली रखेंगे. सो होल की 2 चीजें हो सकती है, तो होल में हम पैग इंसर्ट कर दें या नहीं करें. अगर पैग इंसर्ट किया है
तो वो हिल फ्रेम लिफ्ट होगी, और पैग अगर इंसर्ट नहीं किया है तो वो हिल फ्रेम लिफ्ट नहीं होगी, वो लोअर होगी. So now we have only 3-4 minutes. So this topic is not completed yet. I will take the construction and working of Dobby shading mechanism in the next class. Till that, you can see this video again and again 2-3 times today. So please try to get the time. It will require maximum 30 minutes, 30-35 minutes का वीडियो है. तो at least 2 बार इसको आप देखें, और जहाँ पे भी समझ में नहीं आए रोक करके उसको पॉज करके देखते जाएं, और एक एक पार्ट के नाम को और एक एक पार्ट के कनेक्शन को आप समझने की कोशिश करें. Then only you will be able to draw the diagram and you will be able to explain its construction and working. So construction and working मैं वापस next class में बहुत डिटेल में लेने वाला हूँ. तब तक आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ करके नेक्स्ट क्लास में आए. Thank you students. If you have any questions, still we have 2-3 minutes. But if you want that कि आप वीडियोस देखें, फिर आप समझने की कोशिश करें, फिर क्वेश्चंस पूछें, you can ask in the next class also. But right now still we have 2-3 minutes. So if you want to ask some question, we can take your questions. Any question? पहले जो हमने लिया, इसके पहले जो हमने लिया है पार्ट, वो थ्योरेटिकल पार्ट था, उसमें इतना कुछ समझने को नहीं था. Yes, ये पार्ट रहेगी, ये स्लाइड रहेगी थी. क्लाइमेक्स डॉबी, इट इज एन ओपन शेड डॉबी. Different types of dobbies are there students. Open closed shed dobbies, open shed dobbies. Closed shed में भी 2 तरह की होती है, bottom close and center close. Open में भी 2 तरह की होती है, semi open and fully open. तो कुछ dobbies closed shed बेसिक के प्रिंसिपल पर काम करती, कुछ ओपन शेड पे काम करती. क्लोज शेड और ओपन शेड का मतलब ये होता है, जब बीटिंग होती है, जब रीड फॉरवर्ड मूव करती है, तो उस समय शेड क्लोज है या ओपन है, उसके अकॉर्डिंग. कुछ डॉबीज इस प्रिंसिपल पे होती कि क्लोज शेडिंग के अंदर बीटिंग होती है, क्लोज शेड क्लोज हो रहा होता है तभी बीटिंग होती है. कुछ के अंदर शेड पूरा ओपन रहता तब बीटिंग होती है, कुछ में सेमी ओपन रहता तब बीटिंग होती है. कुछ में जब क्लोजिंग होती है तो बॉटम में क्लोजिंग होती है, कुछ में सेंटर में क्लोजिंग होती है थ्रेड्स की. क्लोजिंग मींस पहले शेड बन गया है और वापस शेड क्लोज हो जाता है, उसको हम क्लोज शेड बोल रहे हैं. तो ये, और कुछ में ओपन ही रहते हैं, शेड कभी क्लोज होते ही नहीं है. either they are in the top layer or they are in the bottom layer. टॉप से सीधा बॉटम में आएंगे, बॉटम से सीधा टॉप में जाएंगे. लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है, सारे थ्रेड्स सेंटर में आते हैं या बॉटम में आते हैं, एंड अगेन वो नेक्स्ट पोजीशन उनको टॉप में जाना है या बॉटम में जाना है, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन डिसाइड होती है. बट दिस डॉबी इज बेस्ड ऑन ओपन शेड प्रिंसिपल. क्लाइमेक्स डॉबीज आर कंस्ट्रक्टेड विद डबल जैक्स, जैसा मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया, डबल जैक्स होते हैं, एंड प्रीफर्ड फॉर वाइडर लूम्स. और वाइडर लूम्स के ऊपर हम प्रीफर करते हैं क्योंकि डबल जैक है तो हिल की कंट्रोलिंग आराम से कर सकता है. एज दे नॉट ओनली कीप द हिल्स अंडर बेटर कमांड बट ऑल्सो मूव देम इन परफेक्टली वर्टिकल प्लेन. जैसा मैंने आपको बताया, उसको एकदम वर्टिकल प्लेन में रखेगी और उसको बेटर वे में कमांड करेगी, क्योंकि 2 जैक हैं. अगर सेंटर में जैक होगा तो उतना कंट्रोलिंग नहीं होगा. तो नैरो लूम्स में हम सिंगल जैक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो वाइडर लूम्स होते हैं उसमें हिल की विड्थ ज्यादा होती है, इसलिए हम डबल जैक्स यूज करते हैं. तो इसके अंदर डबल जैक्स हम यूज करते हैं, ओपन शेड प्रिंसिपल पर बेस्ड है. एंड डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. We will repeat the diagram again and then we will see, try to understand construction and working of this Dobby shading mechanism in the next class. Thank you.